میں نے ابھی ریسنٹلی پڑھ رہی ہوں. میں ایکچولی میں ساتھ ساتھ آپ کے پڑھ ہی رہی ہوں اس کتاب کو. اینڈ اٹس کالڈ ہینڈز فری ماما, a guide to putting down the phone, burning the to-do list, and letting go of perfection to grasp what really matters. یہ بک ہے اور اس کی بیسکلی 12 چیپٹرس ہیں. حالانکہ لیکن آئی واز تھنکنگ کہ آج ہم صرف فرسٹ 6 چیپٹرس کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا کہتے ہیں ہماری آڈینس کیا چاہتی ہے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب لکھی ہے ریچل میسی اسٹیفرڈ نے. اب ریچل میسی اسٹیفرڈ کون ہے؟ ریچل میسی اسٹیفرڈ میری اور آپ کی طرح ایک بڑی اچھی سی پیاری سی موم ہے, اور وہ اپنی لائفس میں, جیسے کہ ہم سارے اپنی لائفس میں بزی ہوتے ہیں اور اپنی لائفس میں کچھ نہ کچھ کام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اسی طرح کے کچھ کام کر رہی تھیں. اور وہ کہتی ہیں کہ میری لائف بہت زیادہ بزی تھی, اتنی بزی تھی کہ مطلب میں نے ہر چیز اسکیجول پہ اور ایجنڈے پہ لکھی ہوئی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ اسکیجول والے لوگ ہیں, یا ہر چیز جو ہے وہ اپنے اسکیجول پر لے کے چلتے ہیں, یا آپ لوگوں نے مارک کیا ہوتا ہے سارا کچھ. لیکن یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں اور اگر آپ اسٹے ایٹ ہوم مام بھی ہیں تو بھی ہماری ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ ہیں, اور ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی ہیں, ان کو یہاں لے کے جانا, وہاں لے کے جانا, وہاں لے کے جانا, ٹیوشنز ہو گئیں, اسپورٹس ہو گئے, کلاسز ہو گئیں, ایکسٹرا کریکولر کلاسز ہو گئیں, تو یو نیور ہیو دا ٹائم بیسیکلی. تو وہ کہتی ہیں کہ what is hands free, and she says کہ hands free ایک ریولیوشن تھا جو انہوں نے شروع کیا فیس بک کمیونٹی سے. ایکچولی انہوں نے ایک چیز سوچی اور پھر اس کا تہیہ کیا, اور چونکہ وہ بلاگر ہیں, رائٹر ہیں بائی پروفیشن, تو انہوں نے اپنی فیس بک کمیونٹی بنائی. میرے خیال سے آپ کو اگر آپ آن لائن سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ہینڈز فری ماما والی جو کمیونٹی ہے یہ آپ کو فیس بک پہ مل جائے گی. تو ہینڈز فری کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو عام زبان میں ہاتھ فارغ, رائٹ, لیکن ہاتھ کس چیز سے فارغ؟ ہاتھ اس چیز سے فارغ کہ آپ کے ہاتھ میں ہر وقت آپ کا فون ہو. اور یہ زیادہ بیسیکلی ہماری ٹیکنالوجی کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہے, یہ اس حوالے سے یہ کتاب ہے اور اس حوالے سے یہ انٹروڈکشن ہے. وہ کہتی ہیں کہ change begins with the revolution, with the recognition کہ کسی چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, کسی چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس چیز کا میری زندگی پہ ڈائریکٹلی اتنا افیکٹ ہے کہ مجھے وہ نقصان پہنچا رہا ہے. ٹھیک, تو وہ کہتی ہیں, اچھا وہ چھوٹی چھوٹی نا لائنرز لکھتے ہیں اور وہ مجھے بڑے پسند ہیں, تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اچھا اگر آپ کو یہ اپنی لائبریری سے مل سکتی ہے, یا اگر آپ خرید سکتے ہو تو ضرور خریدو, یا ایسا کر لو کہ 3-4 لوگ اکٹھے ہو جائیں, خرید لیں بک کو اور پھر آپس میں اس کو شیئر کر لیں, روٹیٹ کر لیں. کیونکہ اس بک کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ بک کہانیوں کی طرح لکھی ہوئی ہے. لائک یو آر کنٹینیولی لسننگ ٹو somebody's اسٹوری. اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ یوزلی زیادہ تر بکس ڈرائی ہوتی ہیں, آپ کو ریزن دیتی ہیں, لاجک دیتی ہیں, پھر آگے نیکسٹ چیپٹر پہ چلی جاتی ہیں. اس میں ان کی اچھی بات یہ ہے کہ ہر چیز ان کی اپنی لائف کی کہانی سے جڑی ہوئی ہے. I'm becoming hands-free. I want to make memories, not to-do lists. I want to squeeze my child's arm, not pressure of overcommitment. I want to get lost in conversation with people I love, not consumed by a sea of unimportant emails. I want to be overwhelmed by sunsets that give me hope, not be overloaded agendas that steal my joy. I want the noise of my life to be a mixture of laughter and gratitude, not the intrusive buzz of cell phones and text messages. I'm letting go of distraction, disconnection, and perfection to live a happy life that simply, so very simply, consists of what matters the most, which is it's becoming hand free. تو وہ پہلا جو ان کا چیپٹر ہے وہ کہتا ہے اویئرنیس, رائٹ. کسی بھی چیز کو, کسی بھی ریولیوشن کو سٹارٹ ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمارا ضروری قدم کیا ہوتا ہے کہ ہم اس بات سے اویئر ہو جائیں, اس بات کو مان لیں کہ مسئلہ ہے. اور وہ اپنی کہانی شروع یہاں سے کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ 3 کہانیاں ہیں جو آگے پیچھے ہوئیں جس کی وجہ سے میں نے ریئلائز کیا کہ میری زندگی میں مسئلہ ہے. سب سے پہلے وہ کہتی ہیں کہ میری چھوٹی بیٹی تھی اور وہ نا وہ کنڈر گارڈن جا رہی تھی, لیکن ابھی تک نا وہ اپنا انگوٹھا مس کرتی تھی. ٹھیک ہے, اب مطلب
सक करती थी वो अपना अंगूठा, और उसको रोज़ सुबह मैं जल्दी जल्दी में अपना फ़ोन चेक कर रही हूँ, अपनी ईमेल कर रही हूँ, लगी हुई हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, और साथ साथ उसके ब्रेड के ऊपर बटर लगा रही हूँ और उसको दे रही हूँ कि फटाफट खा लो फटाफट खा लो। तो क्या हुआ कि मैंने जब ये सारे काम करी थी तो वो बैठी हुई थी सोफे पे, आराम से बैठी हुई थी, ना वो टीवी देख रही थी ना वो कुछ कर रही थी, बस बैठी हुई थी। तो मैंने ना उसकी तरफ गौर से देखा, और जब मैंने उसकी तरफ गौर से देखा तो मुझे अचानक से यूँ महसूस हुआ कि जैसे वो उदास है। पता नहीं मेरे अंदर क्या चीज़ जागी, वो कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रही। वो कहती हैं, रेचल कहती हैं कि पता नहीं मेरे अंदर क्या चीज़ जागी कि मेरा दिल के कि मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के जाके उसके पास बैठ जाऊँ। और मैं बैठ गई। हालांकि ये मेरी आदत में नहीं है, मेरी फितरत में नहीं है, मेरे पास 3600 और काम थे करने वाले, लेकिन मुझे एकदम से यूँ महसूस हुआ जैसे उसको मेरी इस वक्त ज़रूरत है। तो मैंने जो अपनी ईमेल, फ़ोन, ब्रेकफास्ट, नाश्ता और 3600 काम शुरू किए हुए थे, मैंने छोड़े और मैं गई और मैं सोफे पे जाके उसके पास बैठ गई। जब मैं बैठी तो वो मेरी गोद में आ गई, और जब वो मेरी गोद में आ गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ पकड़ के चूम लिया। कहती है वो जो एक लम्हा था जिसमें उसने मेरा हाथ चूमा, मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा था। उन्होंने इस मोमेंट को उन्होंने कैप्चर कर लिया। ठीक, एक ये मोमेंट हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने ना उसी वक्त मैंने तहैया कर लिया कि मैं ना ज़रूर अपने बच्चों को कोई ऐसा टाइम दिया करूँगी 1-on-1 जिसमें कि मेरे हैंड्स फ्री हों, जिसमें कि मेरे हाथ में किसी किस्म का भी काम ना हो, वो वक्त मेरा सिर्फ मेरे बच्चों के लिए हो। वो कहती हैं कि opportunities to connect to the loved ones become more apparent. My hands-free inner voice began to grab me and gently encourage me, saying, "Come on, put the phone down. Turn off the computer. You are missing your life." I realized that even in the midst of a busy day, there are countless opportunities to pause and connect with the people who matter most. I just had been too distracted to notice. ये मेरे ख्याल से हम सबकी लाइफ में है, हम सबकी लाइफ में ऐसा ही है। अच्छा, फिर वो उन्होंने फिर एक सेकेंड एग्जांपल दी, कैचिंग रेनबोज। अब इसमें वो कहती हैं कि हम कहीं जा रहे थे और एज़ यूजुअल मैं बच्चों को किसी क्लास पे लेके जाना था, लेकिन वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि क्लास कैंसिल हो गई, स्विम क्लास थी। वापसी पर हम आ रहे थे तो बारिश हल्की हल्की यूँ महसूस हुआ कि जैसे बारिश होने लगी। जैसे धूप छाँव वाली बारिश नहीं होती कि वैसे एक तरफ धूप निकली होती है लेकिन एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया में बारिश हो रही होती है, इधर काफ़ी इस तरह से होता है। तो वो हो रही थी, तो मैंने गाड़ी गराज में पार्क की और मैंने देखा कि गराज काफ़ी मैसी था। मैं गराज साफ़ करने लग गई तो मेरी बच्चियाँ जो थी ना, उन्होंने मुझसे कहा कि मामा हम बारिश में जाके खेल लें। तो मैंने उनसे कहा हाँ जाके खेल लो। जब मैं उनको खेलता हुआ देख रही थी, मैं सफाई करते करते मैंने उनको खेलते हुए देखा, तो मुझे याद आया कि मैं अपने बच्चों के साथ कभी बारिश में खेली नहीं। तो मैंने अपनी चीज़ें वहाँ पे छोड़ी और मैं उनके साथ बाहर चली गई और मैंने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। वो छलांगे लगा रहे थे, जंप कर रहे थे, डांस कर रहे थे। मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ। कहते बच्चे इतने खुश हुए कि माँ सारे काम छोड़ के हमारे साथ आ गई है। और फिर थोड़ी देर बाद साथ वालों के 2 बच्चे थे तो उन्होंने कहा कि वो देखो वो रेनबो है, वो रेनबो है। और हम लोगों ने भी देखा तो वाकई में रेनबो निकल आया था। और मेरे बच्चों ने यूँ हाथ ऐसे किए जैसे कि वो उस रेनबो को पकड़ लेंगे। तो उन्होंने इस चैप्टर का नाम रखा है कैचिंग रेनबोज। चैप्टर नहीं, थोड़ी सी सब हेडिंग वाला एक डिवीजन पार्ट है। तो कहती है मैंने उस वक्त अपने बच्चों के साथ वो रेनबो कैच की। ठीक, पहला इंसिडेंट ये कि जब उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी बेटी के पास बैठी और उनकी बेटी ने उनका हाथ चूमा तो उन्होंने तहैया कर लिया कि आई हैव टू बी हैंड्स फ्री, आई हैव टू मेक दिस अ हैबिट। सेकंड, व्हेन द चिल्ड्रन प्रिटेंडेड टू कैच द रेनबो, शी सेड आई एम गोइंग टू कैच दिस रेनबो विद माई चिल्ड्रन। और थर्ड वाला भी बहुत मज़े का है, एंड एज अ वुमन, एज अ वाइफ, एज अ मदर, यू वुड कनेक्ट विद दिस इंसिडेंट वेयर शी सेज कि मुझे याद पड़ता है कि मेरी शादी नई नई हुई थी और मैं पहले किसी और शहर में होती थी और अब मैं किसी और शहर में आ गई थी। और जाहिर सी बात है जब मैं किसी नए शहर में आई थी तो ना मेरे कोई जान पहचान वाला था, ना मेरे कोई मतलब मेरे पास नौकरी थी, जॉब थी मेरे पास में, और मेरा हस्बैंड जॉब कर रहे थे और रोज़ मेरा मतलब कि ट्रैवल होता था। लेकिन चूँकि मैं अपनी फैमिली के बहुत क्लोज थी तो मैं अपने वालिदैन को बहुत मिस करती थी। अच्छा, जब वो ये बात लिख रही हैं तो मैंने सोचा सुभान अल्लाह, औरत ईस्ट की हो, वेस्ट की हो, नॉर्थ की हो, साउथ की हो, मैके की याद एक फितरी अमल है, चाहे वो कितनी इंडिपेंडेंट हो, चाहे उसका बैंक बैलेंस करोड़ों का हो। माँ बाप की गोद, माँ बाप की शफकत, माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप की एक खुशबू होती है जो हर दीन मज़हब रंग नस्ल की औरत को मतलब कि महसूस होती है, स्पेशली शादी के बाद।
खैर, coming back to the point, she says कि मैं बेतहाशा उदास थी और मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से, मतलब मैं कर क्या रही हूँ, मैंने अपनी पसंद की शादी की है, मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ, लेकिन ये क्या ज़िंदगी है कि ना माँ है पास, ना बाप है पास। कहती हैं और उस वक्त जब मैं थी ना, तो मैं उस रोड पे वापसी पे घर की तरफ आ रही थी और मैंने महसूस नहीं किया कि मेरे सामने हराइजन था, और एकदम से मेरी आंखें में आंसू था, म्यूज़िक कोई लगा हुआ था और मैं इंतहाई उदास थी। लेकिन जब मैंने यूँ नज़र उठा के ज़रा गौर से देखा तो आसमान इंतहाई खूबसूरत कलर्स डिस्प्ले कर रहा था। कहती वो जो कलर्स थे ना, वो जो एक सनसेट मोमेंट था, उसने मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे मुझे अल्लाह की तरफ से कोई सुकून दिया। कहती हैं मैंने उस मोमेंट को अपनी ज़िंदगी के हर खुशी वाले मोमेंट पे कॉपी पेस्ट कर दिया। मतलब कि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ किसी मोमेंट में खुश होती हूँ तो मुझे वो सनसेट याद आता है, जब मैं अपने बच्चों के साथ किसी मोमेंट में खुश होती हूँ तो मुझे वो सनसेट याद आता है। तो बेसिकली वो ये कह रही हैं कि शुक्र गुजारी रखो। उन्होंने उसको अपना सनसेट मोमेंट बताया, लेकिन चूंकि हम इससे ज़रा डीप और फर्दर हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे सनसेट मोमेंट्स नहीं होते हैं, हमारे सजदा शुक्र मोमेंट्स होते हैं, कि जहाँ पे हम अपने रब ताला का शुक्र अदा करते हैं। हम कहते हैं या रब तेरा शुक्र है। जब बच्चे खुश होते हैं, मामा देखिए ये वो किया, और आप उस मोमेंट में प्रेजेंट है, आपके दिल में एक शुक्र आता है। जब आपके हस्बैंड के साथ आपकी कोई अच्छी बात होती है या कोई मुस्कुरा के या कोई हंसी मजाक की बात होती है, जब आप वो सुकून इत्मीनान महसूस करते हैं तो आपके शुक्र मोमेंट्स होते हैं। तो वैसे तो हमें सुन्ना को रिवाइव करना चाहिए, और सुन्ना ये है कि सजदा शुक्र करना चाहिए। अब सजदा शुक्र के लिए लोग कहते हैं कि क्या उसके लिए वज़ू ज़रूरी है, क्या उसके लिए पाक होना ज़रूरी है, क्या उसके लिए ये ज़रूरी है। सजदा शुक्र है, अपने रब के आगे सजदा है। हम अपने रब के बंदे हैं, अपने रब के मतलब कि हमारा काम ही क्या है रब की इबादत के अलावा। तो उस मोमेंट में सजदा शुक्र कर लेना। अच्छा, लोग कहें कि अच्छा अगर मैं बाहर हूँ, अगर मैं सड़क पर हूँ, तो एटलीस्ट दिल में इमेजिन कर लो कि सजदा शुक्र कर लिया। लेकिन आई टेल यू कि किसी भी बड़े गुरु की, किसी भी राइटर की, किसी भी स्पीकर की, अगर आप कोई भी किताब कभी भी उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो सीक्रेट है ना, वो शुक्र है। फिर वो कहते हैं हैंड्स फ्री रिफ्लेक्शन। Every now and then, I experience hand-free reminders, moments when my child suddenly looks grown up and says something profound. Pay attention, this won't last forever. उनका पूरी बुक में उनका रुझान इसी बात पर है कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। खुदारा जो काम आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हांडी चढ़ाना उस वक्त इंतहाई इम्पोर्टेंट लग रहा होता है, या वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकाल के निचोड़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होता है, और इम्पॉर्टेंट होता भी है। अगर किसी कोई हेल्प नहीं है आपके पास तो वो काम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 2 मिनट लगते हैं उस बच्चे की बात सुनने में और उस बच्चे को सेटिस्फाई करने में। तो इस बात पे उनका ज़्यादा जोर है। आई नीड टू रिमाइंड दैट आई कैन कंप्लेन लेस। बहुत अच्छी बात है। चेरिश मोर, लेट गो टू हैव टूज एंड से यस ऑफन. I need to be reminded that although sunsets and goodbyes happen every day, each one should be treated as if it's their last. क्योंकि ज़िंदगी के अगले लम्हे का पता नहीं। कितनी खूबसूरत बात है। अब ये बंदा जो है, ये क्रिश्चियन है और ये रब का जिक्र करती हैं और ये अपने एतक़ाद के हवाले से बात करती हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात इस बुक की ये लगती है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी ज़िंदगी का भी सेंटर है। हर बात में इन्होंने रब का शुक्र अदा किया और हर बात में इन्होंने कहा है कि सोचो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। Because the day will come sooner than I think, when I stand inside her bedroom closet and I'll be able to see the floor. There will be no brightly colored clothes haphazardly hung from the hangers along with the narrow walls, no dirty clothes, the mist, the mark of hamper. And I will place my hand on all that is left, and when I do, I will be so grateful that I hugged her that day rather than scolding her for writing her name on the wall. Because in the end, a moment of aspiration will be just as much as a gift as a moment. So I tend to keep reminding myself. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah. अच्छा,
बुक में रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस भी हैं, चूँकि मैं मेन पेज से ऑनलाइन नहीं आई हूँ, तो मसला थोड़ा सा ये है कि मुझे ना किसी किस्म के कमेंट्स नहीं नज़र आ रहे, मुझे कुछ भी नहीं स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा सिवाय ये कि मैं लाइव हूँ. तो आई वुड हैव रियली लव्ड कि रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस पे अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते, थोड़ा सा मेरा और आपका जो है ना वो एक्सचेंज हो रहा था सोच का. लेकिन चलें नेक्स्ट टाइम, बिकॉज दिस बुक हैज़ 12 चैप्टर्स. मैं हमारी एडमिन से बात करूंगी कि इंशाल्लाह आई वुड लाइक टू कंप्लीट दिस बुक 6 टुडे एंड मे बी 6. आई विल लेट यू नो द टाइम सून. What do you consider a valuable use of your time? उन्होंने कहा कि ये बातें लिखें. What do you लिख लें? What do you consider a valuable use of your time? Does your daily agenda reflect this? Have your distractions taken an undeserved position on your priority list? What parts of life do you not want to miss? What are you going to do to ensure that you are grasping the moments that matter today so that you don't live with regret tomorrow? Basically उन्होंने वही लिखा है कि वो 4-5 चीज़ें लिख लें. क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में इस वक्त, क्या चीज़ जो है वो अनइम्पॉर्टेंट है जिसने आपकी लाइफ का बेशतर हिस्से को मतलब कि कंज्यूम कर लिया हुआ है. जज़ाकल्लाह खैर, मुझे ये कमेंट ज़रूर मिल गया. जज़ाकल्लाह खैर फातिमा, थैंक यू सो मच. अच्छा, चैप्टर नंबर 2, मेक पर्पसफुल कनेक्शन कनेक्टेडनेस. पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इस बात से अवेयर हो जाओ. ठीक है, अवेयर हो जाओ कि मसला है, वो अवेयर हो गई. उन्होंने अपनी स्टोरीज बताई, उन्होंने कहा मैं अवेयर हो गई. चलो, अब उन्होंने कहा कनेक्ट हो जाओ. अब किस चीज़ से कनेक्ट हो जाओ? फिर वो वही वाली बात करते हैं कि जब मेरी बेटी ने मेरा हाथ छुआ तो वो एक पावरफुल इम्प्रिंट छोड़ गया मेरे अंदर. ठीक है, और उसके बाद वो आगे बढ़ती हैं और वो कहती हैं कि मैंने ना जब ये तहैया किया कि मैंने फ़ोन से अपनी जान छुड़ानी है. अच्छा, बाद में वो ये भी कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पूरी तरह से फ़ोन से जान छुड़ा ली, क्योंकि अगर उन्होंने फ़ोन से जान छुड़ा ली होती और ईमेल से जान छुड़ा लिया होता तो ये इतनी अच्छी किताब ना लिख रही होती. शी इज़ अ राइटर बाय प्रोफेशन. वो ब्लॉग लिखती हैं, अभी भी लिखती हैं मेरे ख्याल से. और उनके बच्चों को पता था कि हमारी माँ राइटर है और हमारी माँ हर वक्त लिख रही होती है और डेडलाइंस होती हैं और ये और वो. ठीक है, तो वो कहती हैं कि लेकिन जब मैंने ये तहैया किया ना कि मैंने फ़ोन से अननेसेसरी ईमेल चेक करने से, अननेसेसरी अपना सोशल मीडिया पे रहने से मैंने अपने आप को कम करना है, तो मैंने ना अपने बच्चों को बताया नहीं. मैंने अपने शोहर को भी नहीं एक्चुअली बताया, लेकिन मैंने इंटेंशनली अपने आप को 5 मिनट की 10 मिनट की ब्रेक देनी शुरू कर दी. जब उन्होंने अपने आप को ब्रेक देनी शुरू कर दी तो उनको नज़र आने लगा कि उनके पास तो बहुत टाइम है अपने आप को देने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए, अपने बच्चों के साथ हंसी मजाक करने के लिए. तो उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने ना मैं अपने शौहर से जब बात करती हूँ तो अक्सर मैं अपने शौहर को लेटर्स लिखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं लिख के अपनी बात ज़्यादा बेहतर बता सकती हूँ. तो कहती है जब मैंने ना अपने शौहर को कुछ दिनों के बाद बताया कि तुम्हें पता है मैं ये कर रही हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ टाइम बहुत एंजॉय कर रही हूँ, तो तुम्हारी क्या राय है? तो उसने मेरा लेटर पढ़ने के बाद मुझसे बात की. उसने कहा अच्छा, मैंने नहीं नोटिस किया, लेकिन चलो ये तो बहुत अच्छी बात है. फिर कुछ दिनों के बाद वो बच्चों के साथ कहीं बच्चों को लेके म्यूज़ियम गया और वापसी पे कहती कि जैसे शौहर वापसी पे बच्चों के साथ घर में एंटर हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे कुछ बताना चाह रहा है. और उसने मुझे बताया कि तुम्हें पता है रेचल, मैंने भी वही किया जो तुमने किया. मैंने अपना फ़ोन अंदर रख लिया, जेब में रख लिया, बल्कि मैंने स्विच ऑफ कर दिया. और म्यूज़ियम में सारा वक्त मैं बच्चों के साथ हाजिर रहा, प्रेजेंट रहा. मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा जो बच्चे घूम रहे हैं, बच्चे आगे आ गए हैं और पेरेंट्स पीछे फ़ोन पे टक 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 लगे हुए हैं. राइट, अब ज़रूरी नहीं कि सारे पेरेंट्स शुगल में हैं कि मजाक में हैं, वो काम ही कर रहे हो सकते हैं. क्योंकि रेचल ने ये नहीं कहा, एक दफ़ा भी उसने अपनी किताब में ये नहीं कहा कि मैं अननेसेसरीली फ़ोन पे थी. उसने कहा कि मैं काम के सिलसिले में इतना बिजी थी और मुझे फ़ोन की जो बेल्स होती हैं, क्लिंग टिंग रिंग, ईमेल आ गई है, मैसेज का जवाब देना है, कि मैं उस चीज़ को मैंने अपनी प्रायोरिटी बना लिया था. यही हाल बाकी हम सबका भी है. तो वो कहती हैं कि मेरे शौहर को ये बहुत अच्छा लगा और उसके अलावा हम दोनों ने फिर मतलब कि अपने आप को इंटेंशनली जो है ना वो फ्री करना शुरू कर दिया.
अच्छा, फिर उन्होंने ना एक छोटे से किसी और की एग्जांपल दी, क्योंकि मैंने आपको बताया शुरू में कि एक फेसबुक कम्युनिटी थी, तो वो ना साथ साथ लोगों की एग्जांपल्स भी दे रहे थे, क्योंकि लोग उनसे बात करते थे। तो कहती हैं कि एक माँ ने मुझे ईमेल किया और उसने मुझे कहा कि मेरा बेटा जो था ना वो स्कूल में बुली हो रहा था और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होता था, लेकिन चूंकि मुझे आपके साथ कम्युनिटी ज्वाइन किए हुए कुछ अर्सा हो गया हुआ है, तो मैंने भी वो हैंड्स फ्री अपने फ़ोन से निकल के बाहर अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू किया हुआ था, इंटेंशनली अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया हुआ था। तो हम लोग किसी रेस्टोरेंट में गए और मेरे बच्चे ने ऑब्जर्व किया कि उसके साथ वाले टेबल पे एक पेरेंट था जो कि मुसलसल अपने फ़ोन पे था और बच्चा जो था वो उदास था। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो मेरे बच्चे ने मुझे गले लगाया और उसने मुझे कहा कि माँ, थैंक यू सो मच, आप दूसरी माओं की तरह नहीं है, आपने सारा टाइम मुझे दिया, मुझसे बातें की, आई लव यू। कहती है उस वक्त मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कि मुझे पता नहीं दुनिया की कितनी बड़ी खुशी मिल गई है। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस रेचल जो है ना अपने ऑडियंस के साथ शेयर करती रहती हैं, जो उनके फेसबुक ग्रुप के लोगों ने उनके साथ शेयर किए थे। अच्छा, अब वो आजकल की सोसाइटी की बात कर रही हैं, वो हर चैप्टर में ना अपनी इंटेंशन और फिर इंटेंशन का रिजल्ट लिखती हैं। तो वो कहती हैं कि स्टार्ट दिस कॉन्वर्जेशन, सो व्हाट इफ वी सिट साइड बाय साइड ऑन द काउच एवरी नाइट यूजिंग आवर इंडिविजुअल हैंड हेल्ड डिवाइसेस एंड लैपटॉप्स, सो व्हाट इफ वी चेक आवर स्मार्टफोन्स एट द डिनर टेबल, इन द कार और while together outside, what's the big deal, we have the rest of our lives to spend together। ये हमारी मेंटालिटी हो जाती है ना कि साथ ही तो हैं, साथ ही तो बैठे हैं, साथ बैठे तो हैं, लेकिन साथ हम प्रेजेंट नहीं हैं, हम अपने स्पाउस के साथ प्रेजेंट नहीं हैं। हम ये मेरे हाल से हम बीवियों की ज़्यादा कंप्लेन होती हैं अपने हस्बैंड से, एटलीस्ट जहाँ तक मेरा ताल्लुक पाला पड़ा है हमारी ख़वातीन से, उनका ये ज़्यादा अलमिया होता है। लेकिन अब मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के एडवेंट की वजह से औरतें भी, मैंने चाहे वो काम कर रही हैं, बिजनेस संभाल रही हैं, स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर औरतें हैं, मतलब कि जैसे कि हमारी माशाल्लाह ग्रुप एडमिन है, ठीक है, या जैसे कि मैं हूँ, या जैसे कि आप में से कुछ होंगी जो अपने फेसबुक ग्रुप्स चला रही हैं या अपने साइड बिजनेसेस चला रही हैं। अब आप अपना बिजनेस भी चला रही हैं, अपना घर भी चला रहे हैं, और आप शायद बच्चों को होम स्कूलिंग भी करा रहे हैं। So you are constantly busy. I remember that I have started saying this to my children, and my children are pretty upset with this. इसमें कोई मुजायका नहीं, जो गलती है वो है, हम इंसान हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। कि मैं अपने बच्चों को कहती हूँ ये फ़ोन जो है ना, ये मैं मजाक में नहीं मैंने पकड़ा हुआ, ये मेरा ऑफिस है, मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ। लेकिन मैंने नोटिस करना शुरू किया है कि ये ऑफिस का काम जो है ना, ये हावी कर लिया है अपने ऊपर, और ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, वो कहती हैं कि मैंने ना कुछ तरीके अपनाए, स्पेशली ड्राइविंग करते वक्त। अब चूंकि ये अमेरिका में रहती हैं, और अमेरिका में मतलब हर ड्राइविंग बहुत प्रेवलेंट है। मतलब अगर आपने यहाँ से ग्रोसरी स्टोर पे भी जाना है तो वो इतना दूर ज़रूर होगा कि आप पैदल नहीं जा सकते, आपको ड्राइविंग से ही जाना पड़ेगा। मैं सबर्ब्स की बात कर रही हूँ, मैं सिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। तो वो कहती हैं कि स्टोरी टेलिंग करो, अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्जेशंस करो, बातें वगैरह करते रहो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछो। अच्छा, ये बात उनकी मुझे पसंद है कि एक तो दिन आपका दिन कैसे गुजरा, आप कैसे हो, आपको कलर कौन सा पसंद है, आपको ये तो आपको वो, या बच्चे खुद ही अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन कहती है जब आप उनसे कन्वर्स कर रहे हो तो आप उससे पूछो, if you were an adult and didn't have to go to school today, how would you spend your day? If you could live anywhere, where would you want to live and why? What was the best dream that you've ever had? If you had 3 wishes, if you saw a homeless person, मतलब hypothetical scenes बना के उनसे पूछें ताकि आपको उनकी सोच का अंदाज़ा हो सके। उसके अलावा अपने बच्चों के साथ कोई मेमोरी शेयर करें अपने बच्चों के साथ। और फिर अच्छा, फिर वो ये लिखती हैं कि मुझे पता है कि मैं सिर्फ मैसेंजर हूँ। आई एम सिंपली द मैसेंजर ऑफ दिस हैंड्स फ्री जर्नी एंड इट इज़ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड 4 लिटिल कारपूल गर्ल्स। उनकी गाड़ी में मतलब 2 उनकी अपनी बच्चियाँ थीं और 2 शायद उनकी दोस्त सहेलियाँ थीं कि आई हैव दिस मैसेज टू गिव। कॉन्वर्जेशंस, मतलब कि जब आप गाड़ी स्पेशली चला के कहीं जा रहे होते हैं तो आप उस वक्त गाड़ी में टीवी या कार्टून ना लगाएं। बच्चे मुसलसल कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हुए जाएं। टर्न ऑफ योर फोन्स, चेंज योर वॉइस मेल टू ग्रीटिंग्स, पुट योर फोन असाइड। वैसे भी मेरे ख्याल से इलीगल है ड्राइविंग करते हुए फ़ोन पे होना, लेकिन वो ये बात करती हैं। आखिर में उनकी एक रिफ्लेक्शन है, वो ये कहती हैं,
अच्छा उनकी बेटी बेसिकली ना उनकी बेटी किसी फंक्शन पे जा रही होती है और वहाँ पे परफॉर्म करती है, तो वो कहती हैं कि मैं उस वक्त मैं जब उसे देख रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कितने सारे अपने मोमेंट्स गंवा दिए, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं कितने सारे मोमेंट्स उसके साथ अब और गुजार सकती हूँ. फिर रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस है. Is there a particular relationship that suffers more than others as a result of your distraction? हमारी लाइफ में कोई ऐसी जो भी हमने डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर ली हुई हैं, कौन सा हमारा रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है? मेरे नज़दीक तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन हमारे शौहर और हमारा रिलेशनशिप भी काफ़ी हद तक सफ़र करता है. What might be the long-term impact on this relationship if you do not curb your distracted ways? सोचें, what anxieties or concerns do you have about letting go of your distractions? And what are some of the positive results that you have experienced when choosing to connection over distraction? अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसे वाक़यात और हादसात हुए कि जिसकी वजह से मुझे सोशल मीडिया से टोटली कट ऑफ करना पड़ा. उससे पहले मैं 10 साल से मुसलसल ऑनलाइन थी, लेकिन जैसे कि आम लोग होते हैं, मतलब कोई मेरा पेज वगैरह एज सच कुछ भी नहीं था. आई वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल कॉमन फोक, जस्ट ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स को लाइक कर लिया, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को लाइक कर लिया, कोई अच्छी पोस्ट शेयर कर ली. लेकिन इट वाज प्रीटी मच लाइक आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया स्टफ. अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें शेयर करना है. एंड देन सडनली समथिंग हिट मी रियली हार्ड, एंड आई गॉट डिसकनेक्टेड फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर अबाउट 1.5 year, ऑलमोस्ट 2 years कह लें. उस 1.5 साल में आपको पता है मेरी सबसे बड़ी रियलाइजेशन क्या थी? अब मैं बिजनेस वूमन नहीं थी उस वक्त, ना ही मेरा कोई करियर था सोशल मीडिया पे, ना ही बस एक फ़ोन ही था ना जो एक शौक था, राइट? एक शौक पाला हुआ था, जो एक डिस्ट्रैक्शन पाली हुई थी. मैंने ये महसूस किया कि किसी ने मुझे मिस नहीं किया. मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड्स जो कि मेरे रियल लाइफ फ्रेंड्स भी थे, उनमें से अक्सरियत मेरे रियल लाइफ फ्रेंड्स भी थे, लेकिन दूर दूर अपने अपने मुल्कों में डिफरेंट जगहों पर रहते हैं. किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, किसी ने मुझे व्हाट्सएप नहीं किया, किसी ने मुझे ईमेल नहीं की, किसी ने मुझे टेक्स्ट तक करके नहीं पूछा कि तुम इतने अरसे से हो कहाँ गायब हो. ये पहला एहसास था जो मुझे बड़ी ज़ोर से धचका. तो एक तो जो लाइफ ने धचका दिया हुआ था वो अपनी जगह एक था, एक अपना एक मेरा एक इमोशनल जर्नी मेरी चल रही थी, लेकिन दिस वाज अनदर रियलाइजेशन. नोबडी केयर्स. इट्स नॉट दैट नोबडी केयर्स, नोबडी रिमेंबर्स टू केयर. मैं आज हूँ, अगर मैं किसी भी वजह से कल ना हो सोशल मीडिया पे, तो आप में से कितने लोग हैं जो रीच आउट करके पूछेंगे? आप लोग इतने सारे लोगों को फॉलो करते हैं, किसको रीच आउट करके पूछेंगे कि बीबी कहाँ चली गई हो? शायद कोई एक आध हिम्मत हौसला कर ले, 2-3 सर्च करके देख लेंगे और 3-4 सोचेंगे इस बारे में, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं. आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही. ये डिसलॉयल्टी नहीं है, ये just the variety of people है that we can stay connected with. हमारी relevance online ना होने के बराबर है. It does not matter आपको कितने लोग follow कर रहे हैं. It does not matter कितने लोग आपका page subscribe करते हैं. If you are not today, if you're not tomorrow, if you don't show up, it's okay. It's completely okay. But you know what's going to matter? What's going to matter is that if you do not show up as a mother, if you do not show up as a wife, if you do not show up as a daughter, if you do not show up as anything that in your physical real life has a reality to your relationships, it's going to matter. It's absolutely going to matter. तो जो उन्होंने ये क्वेश्चन किया, ये बात क्यों मैंने की, ये बात मैंने इस क्वेश्चन पे उन्होंने कहा कि what might be the long-term impact on this relationship if you did not curb your distracted ways. मेरा long time relationship curb मतलब क्या, मतलब दरारें जिसको कहते हैं ना, पड़ जाना. नोट करें कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्या हमारा डिस्ट्रैक्ट होना इतना इम्पोर्टेंट है कि लाइफ लॉन्ग दरार पड़ जाए हमारे रिलेशनशिप्स में? Next, choose what matters. Deliberateness. ठीक है, deliberateness.
انہوں نے کسی کا کوٹ لکھا ہے, اب چونکہ یہ مسلمان نہیں ہے so لہٰذا they talk about this, at least 3 times every day take a moment and ask yourself what is really important. Have the wisdom and courage to build your life around your answer. We don't have to think 3 times a day, we do it 5 times a day. We have our salah 5 times a day. Allah subhanahu wa ta'ala has given us this salah as a gift to remind ourselves جانا واپس لوٹ کے رب کی طرف ہی ہے. جتنا مرضی کما لو, نام, شہرت, عزت, دولت, پیسہ وہ بھی رب کی دین ہے اور جان بھی رب کی دین ہے. صحت مند بچے ملے تو اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں, اور اگر بیماری نے آ گھیرا مجھے یا خدا نہ خواستہ میرے گھر والوں کو تو اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں. ہر چیز ایک ٹیسٹ ہے. آسائش میرے خیال سے زیادہ بڑا ٹیسٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم بھول جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرا رائٹ تھا, یہ تو میرا حق تھا. ڈیلیبریٹنس کے ٹاپک پہ یہ بات کرنا ضروری تھا کیونکہ ہم ایز ہیومن بینگز حق جتانے والی چیزیں ہیں. ہم ہر چیز پہ اپنا حق جتانے لگ جاتے ہیں, ہر رشتے پہ اپنا حق جتانے لگ جاتے ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا, آپ کسی اسٹرینجر سے بھی 3 دفعہ مسکرا کے بات کرو تو چوتھی دفعہ جب وہ آپ سے بات کرے گی یا کرے گا تو وہ ایسے ہی کرے گا جیسے اس کا حق ہے, رائٹ؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو دل سے آپ سے محبت پیار ہو گیا, آپ تو ہمارے اپنے ہو گئے اس لیے ہم نے آپ سے ایسے بات کی. لیکن ایکچوئل بات یہی ہے کہ انسان کی فطرت میں ہر چیز کو قابو کرنا ہے. یہ میرا, یہ میرا, یہ میرا, ہر رشتہ میرا, میرا میرا میرا, رائٹ؟